friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this revision number 8 of this 15 module session. दोस्तों हमने 7 number module से we have started to work on some important acts, some important you can say bills which have been introduced in the last you can say few years. Okay, primarily we are fixing our focus on 2019-20, but we may possibly take up couple of them of 2018 as well. Okay, just for the sake of comfort for you. Okay, मेरा मानना है कि ये जो हम revision module कर रहे हैं especially for this acts, they'll be very useful to you from two perspectives. Number one, it will be useful to you for your current affair. That is obviously it is important, but at the same time you can say this changes in the acts may be there for your legal reasoning as well. Okay, so legal reasoning में भी आपको ये मदद करेगा. Let me start to talk about this. सबसे महत्वपूर्ण we can say बात थी आधार we can say and other law amendment act 2019. दोस्तों ये आधार बनाया गया था यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्लानिंग कमीशन के अंडर में था. प्लानिंग कमीशन रहा नहीं, उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया, बट UIDAI रिमेन्ड. ओके, और इसका जो महत्व था वो काफ़ी बढ़ गया. इनफैक्ट ये कोरोना के समय पे आधार टर्न आउट टू बी वेरी क्रूशियल. फर्स्ट 12 डिजिट नंबर वॉज इश्यूड ऑन September 29, 2010. ये उस समय से चल रहा है. इनिशियली इट हैज़ बीन ओनली एन एग्जीक्यूटिव बैकअप. Finally, government passed a law in 2016 giving Aadhaar a legislative sanction. तो इसके ऊपर एक तरीके से केस भी हो गया था. Yes or no? Which was about privacy issues. Okay, करीबन 125 crore member are part of that. What are the essential things one should know about Aadhaar? One is Aadhaar is a 12-digit number. Okay, this is you can say issued to an individual after a receipt of demographic information, address, date of birth, biometric like iris and fingerprint. Okay, so ये पता होना चाहिए. It is a random number. Okay, it has no relation to any personal detail of a person. It is a random number. You can't connect a number with a demographic detail. Okay, if one has stayed in India for more than 182 days, okay, he or she will be eligible to apply for Aadhaar. So that means Aadhaar is not a proof for citizenship. Okay, but yes, you are a resident Indian, that is acceptable. It does not matter whether a person is NRI or a foreign national. It doesn't matter much. Okay. However, NRI with a valid passport can apply for Aadhaar on arrival without 182 day का stipulation. ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड ने आधार एक्ट के द्वारा जो क्लैरिफाई किया गया है that even if you are holding आधार or applied for one, it does not mean that you have received Indian citizenship. ये तो बिल्कुल दिमाग में डाल दीजिए. ठीक है. Now point is why there was a need to incorporate an amendment, and there was an amendment with respect to section 57 of you can say this Aadhaar card act. Okay, great. Section 57 allows not only the state but also body corporate or a person or a private entity to demand Aadhaar from the citizens. दोस्तों जैसे आधार बैंक मांग सकती है, आधार एक स्कूल मांग सकती है, ठीक है, विच आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, दिस आर नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो इट गिव्स स्टैट्यूटरी सपोर्ट टू मोबाइल कंपनीज, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर टू सीक इंडिविजुअल्स आधार्स. नाउ यहाँ पे एक तरीके से प्राइवेसी का इश्यू आने लगा. So there was a majority judgment was provided in 2018, which is by Supreme Court. ठीक है. When government is giving services subsidy, it is to be linked with Aadhaar. This is what to be allowed. Aadhaar is to be linked with PAN card to eliminate wrongdoing. But what is not allowed? School admission. ठीक है, is neither a service nor a subsidy. Thereby government cannot force or thereby school cannot force the parents to give Aadhaar. Private companies cannot insist on Aadhaar. Similarly, that is mobile companies, mobile phone connections need not be linked to the Aadhaar, and bank accounts need not to be linked with Aadhaar as it does not meet the test of proportionality. Yes or no? Is that comfortable? Great. Now what is the meaning of test of proportionality? Proportionality का मतलब होता है कि अगर जो बेनिफिट मुझे मिलने वाला है बैंक से उसके सामने है ना मेरी जो परेशानियां मुझे भुगतनी है वो अगर कम है और पब्लिक गुड ज़्यादा है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल. बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ.
ये सुनो, पब्लिक गुड वॉज नॉट गुड, उसके सामने यू कैन से प्राइवेसी वॉज अ मेजर इश्यू, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, आधार यू कैन से एंड अदर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019, नाम याद रखिएगा इसका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ जो केस हुआ था 2018 वाला, प्लीज बताइए, वो तो 2019 में पूछ लिया था क्लैट वालों ने, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट दैट वी आर नोइंग इट एंड दैट वाई वी आर जस्ट आस्किंग यू, ठीक है। इट अलाउज वॉलंटरी यूज ऑफ आधार as a proof of identity for users to open bank account and get mobile connection. So this is voluntarily, आपको देना है तो आप दे सकते हो, आपको देना है तो आप दे सकते हो। Hence amendment provide for use of Aadhaar number for KYC authentication on voluntary basis under Telegraph Act 1885 and Prevention of Money Laundering Act 2002। ये वैलिड हुआ, वॉलंटरी बेसिस पे दिया तो वैलिड है, अगर आपको फोर्स किया गया तो वैलिड नहीं है। इट प्रोवाइड्स अ स्टिफ 1 crore पेनल्टी एंड अ जेल टर्म फॉर प्राइवेट एंटिटी फॉर वायलेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस। बिल अलाउज UIDAI। दोस्तों UIDAI के करंट चेयरमैन कौन है? फाउंडर चेयरमैन थे मिस्टर नंदन नीलेकनी। Who is the current chairman? So bill allows UIDAI to decide whether an entity can use Aadhaar or not. Who will authenticate whether this organization can take Aadhaar or not? That is this UIDAI. It provides for dedicated unique identification authority of India fund, ठीक है, which will receive all fees and revenue collected by UIDAI, and it provides for possibility of individuals filing complaint under certain circumstances such as impersonation। कोई उनका impersonation करता है, आपने देखा होगा नीट में not NEET but UPSC में एक स्टूडेंट थी, she cleared it, she was you can say a model as well, and उनका impersonation बहुत सारे लोगों ने किया था, है ना, फेक उनके अकाउंट खुले गए थे ऑन इंस्टाग्राम। Experts say that the issue of privacy and proportionality is not addressed through the amendment act। मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी तो ज़रूर हुआ उस बात पे, ठीक है, कि भाई जो आधार है और सामने प्रोपोर्शनलिटी का जो प्रिंसिपल है वो दोनों सेटिस्फाई तो नहीं हो रहे। बट एनीवे, यू गाइज आर नोइंग नाउ व्हाट इज दिस, यू कैन से प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट। अनदर यू कैन से अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 क्या था, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ 45th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इन यूनाइटेड नेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड NHRC, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। NHRC हैज बिकम अ पोस्ट ऑफिस, ऐसा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था। व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस, not like post करने वाला पोस्ट, it is holding a post, okay। So for example those CJI, ठीक है, after their retirement they become the chairman of NHRC। so ये एक तरीके से पोस्ट ऑफिस बन गया था। रंगनाथ मिश्रा was appointed as first NHRC chairperson, so is the current one, I'm sure all of you must be knowing it, but you must tell me। so 1993 act provides for the constitution of NHRC, SHRC and human rights code for protection of human rights। I'm sure you know human rights। human rights are life, liberty, equality, dignity, ठीक है, as per Indian constitution as well as international convention। so काफी broader idea है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, बहुत ब्रॉड आइडिया है दोस्तों, और ये ब्रॉड आइडिया चाहिए भी, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर इस तरीके के विचार तो चाहिए। इट प्राइमरली टू लुक एट एक्सेसिस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब किसी ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया, जो एक्सेसिस हुए, उसके लिए सरकार का अप्रूवल नहीं चाहिए उनको, ठीक है, दे कैन डू इट ऑन देयर ओन। NHRC बहुत सारी जगह पे अपने आप हुआ गया था, ठीक है। सो ओरिजिनल NHRC एज ए चेयरपर्सन एंड 4 मेंबर, द चेयरपर्सन शुड बी रिली कैन से रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस बोला गया था। ये नो ग्रेट, ठीक है, ओके। ओरिजिनली इट हैज 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर एज पर द ओरिजिनल एक्ट। ये सब पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी अमेंडमेंट के ऊपर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिनल एक्ट चेयरमैन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और दे कैन अटेन एज ऑफ 70 व्हाटएवर इज दी यू कैन से अर्लियर, ओके, ठीक है। सो अगर 5 साल कंप्लीट हो गया तो मतलब उनको रोक दिया जाएगा, ठीक है, या 70 year होगा तो रोक दिया जाएगा। अब यहाँ से एक बात करते हैं, CJI का रिटायरमेंट एज, ठीक है, क्या है बताइए दोस्तों, CJI कब रिटायर होते हैं?
Very good. At the national level, members are appointed by the president on the recommendation of a 6-member committee headed by PM. ठीक है दोस्तों, function of the commission is to inquire into the violation of human rights or negligence in the prevention of such violation by a public servant. Human rights violation हो रहा है primarily by public servant. Okay, this is where the issue is. So ये बदलाव आया दोस्तों 1993 और ये आपका अमेंडमेंट 2019. क्या बदलाव आया? Chairperson consists of CGI. The bill amend this to provide that a person who has been a Chief Justice of Supreme Court or a Judge of Supreme Court will be the chairperson. So this is a big change. Okay, पहले सिर्फ CGI बनते थे, अब CGI और you can say Judge of Supreme Court. Okay, this is number 1. Number 2, other members. Okay, the Act provides NHRC must consist of 2 members to be appointed from the amongst person having knowledge of or practical experience in the matter related to human rights. Okay, अब bill ने क्या amend किया that 3 members have to be appointed, of which at least 1 will be woman. Okay, so this is where the issue is, है ना. इन्होंने बोला कि भाई NHRC consist of 2 members to be appointed from this. अब इन्होंने इसको 3 member कर दिया. एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होंगे? चेयरपर्सन्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन ऑफ वी कैन से वुमेन shall be deemed to be the members. So chairpersons of you can say National Commission of Minority, National Commission for SCs, National Commission for STs and National Commission for Women, ये पहले थे. Now the bill provides for including chairperson of National Commission for बैकवर्ड क्लासेस. ये सो नो. तो दोस्तों उनके चेयरमैन कौन है ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ओके, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज द मेंबर ऑफ NHRC. सो ये लोग तो रहेंगे ही, इसके अलावा प्लस किया गया है, एडिशन किया गया है. ठीक है, टर्म क्या होगा? The Act states that chairperson and member of NHRC, ठीक है, will hold office for 5 years or till the age of 70 years. ठीक है, the bill reduces term of office to 3 years or till the age of 70. So दोस्तों 5 साल से 3 साल का टेन्योर कर दिया. This is a change. Reappointment, ठीक है, the Act allows reappointment of NHRC for a you can say period of 5 years. Bill removes 5-year limit for the reappointment. Okay, ठीक है, so this is removed and there is a secretary general which has a power. I don't think that's very important, but 1 2 3 4 important part था जो आपको पता होना चाहिए. ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों. व्हाट आर द मेन फीचर्स? ठीक है, द मेन इंटेंशन इज टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑन द स्पेशल कोर्ट. सिविल लायबिलिटी फॉर द टेक्निकल एंड प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स ऑफ माइनर नेचर, ठीक है, के ऊपर उन्होंने लायबिलिटी डालना चालू कर दिया. ठीक है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स विल बी अपॉइंटेड बाय सेंटर हु विल लिवाई पेनल्टी. सो एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स आएंगे जो पेनल्टी डिसाइड करेंगे सिविल लायबिलिटी के ऊपर. सर्टेन क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इश्यू शेयर्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म ओनली. दोस्तों आपको पता होगा फॉर्म्स आर अवेलेबल इन डीमैट. If you want to do some kind of trading as a common man, then you need a demat account. ठीक है, but still there are few companies, ठीक है, which do not have dematerialized share. तो इन्होंने बोल दिया कि कुछ classes of companies जो होगी वो उनको डीमैट में ही देना पड़ेगा. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी debar a member or a firm for practicing as a CA for a period of 6 months to 10 years for proven misconduct. CAs और प्रूवन मिसकंडक्ट अगर प्रूव हो गया तो प्रॉब्लम होगा. सीएस जनरली एक इनसे कंपनीज को मदद करते हैं और हमने देखा था बहुत सारी सिचुएशन में जो सीएस होते हैं वही गफला करते हैं. ठीक है, अमेरिका में आर्थर एंडरसन करके एक अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग फर्म थी जिन्होंने एनरॉन कंपनी को जो एनर्जी की बहुत बड़ी कंपनी थी उसको मदद किया था और काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों वहाँ पे. ठीक है, सिमिलरली इंडिया के अंदर भी है ना, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ठीक है, अर्न्स्ट एंड यंग्स, उनके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे आरोप लगे थे. ठीक है, सो द अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट 2013 में किया गया था जिसका नाम दिया गया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019. ठीक है, 16 माइनर ऑफेंसेस लाइक इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट,
फेलियर टू फाइल एनुअल रिटर्न, ठीक है, दे आर प्योरली सिविल डिफॉल्ट, ये उन्होंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, क्या क्या चेंजेस करे गए फटाफट देख लेते हैं। नंबर 1, कंपनीज अर्निंग अ प्रॉफिट of over 5 crore or a turnover of 1000 crore, or you can say net worth of more than 500 crore, are required to shell out at least 2% of their annual average net profit towards CSR. You know CSR, that is called corporate social responsibility. दोस्तों CSR अगर कंपनी ने नहीं किया तो उसके ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, पर उसको भी बाद में अमेंड करके चेंज किया गया। ठीक है, तो CSR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, पर्सन होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एटलीस्ट 25% शेयर्स इन द कंपनी और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और अ कंट्रोल ओवर द कंपनी, द डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंटरेस्ट टू दैट इफेक्ट हैज टू बी मेड। दोस्तों आपने सुना होगा कोटक महिंद्रा बैंक के ओनर मिस्टर उदय कोटक हैड लॉट ऑफ शेयर्स, ठीक है, ऑफ यू कैन से दैट कोटक महिंद्रा बैंक, तो ही हैज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट। उनको अपने शेयर थोड़े बेचने पड़े बिकॉज ऑफ दिस, ऑब्वियसली दिस क्लॉज प्लस द RBI गाइडलाइन। बैंक है ना, एट द एंड ऑफ द डे दैट्स अ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो आपको इतने सारे शेयर नहीं रख सकते, है ना, यू हैव टू डाइवर्सिफाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ब्रीच ऑफ सीलिंग ऑन डायरेक्टरशिप विल बी मेड ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आपने बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कुछ गलतियां करी तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट एक्ट वाज मॉडल टेनेसी एक्ट 2019। ठीक है दोस्तों, टेनेसी दैट इज बिकमिंग अ टेनेंट। ठीक है दोस्तों, टेनेंट के लिए बहुत तगड़े रूल होते हैं ताकि लैंडलॉर्ड टेनेंट को परेशान ना कर सके और टेनेंट लैंडलॉर्ड को परेशान ना कर सके। ठीक है, देयर विल बी नो सीलिंग ऑन द रेंट्स, इट इज लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस। ये सबसे बड़ा चेंज है दोस्तों, ये नहीं था, ठीक है, अभी तक, और जिसकी वजह से रेंट का जो एक बिजनेस होता था उसमें काला पैसा, ब्लैक मनी was coming in a big way. If the tenant does not vacate the premises after the rent agreement term expires, the landlord can charge double the monthly rent for 2 months and 4 times monthly rent after that. Okay, that is the kind of power given to the landlord. The tenant can be evicted if there are rent defaults for 2 consecutive months and there is a misuse of property. Landlord must give written receipt for any payment made by the tenant. That's very crucial. Okay, civil courts will not hear any rent related cases. They would be handled by a rent authority. ठीक है, सो एक अलग से रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, न्यू रेंट कोर्ट्स एंड रेंट ट्राइब्यूनल्स विल बी फॉर्म्ड, केसेस मस्ट बी रिजॉल्व विद इन 60 days, ऑल एग्रीमेंट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 2 months। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने बनाना चालू तो कर दिया है, स्टेट्स के ऊपर अभी तक बाइंडिंग नहीं है, स्टेट डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 भी एक महत्वपूर्ण एक ऐसे एक्ट लेकर आया था दोस्तों। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये 2014 का महत्वपूर्ण केस हुआ था और उस केस की गाइडलाइन के मुताबिक ये ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू जेंडर आइडेंटिटी इज इनहेरेंट टू वंस पर्सनल लाइफ, ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी। ये जरूरी है। ट्रांसजेंडर पर्सन हैव द राइट टू आइडेंटिफाई देयर जेंडर एज मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। उनकी मर्जी, उनको कैसे डिसाइड करना है। एवरी पर्सन विल हैव द राइट टू डिसाइड, ओके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेडिकल, सेक्स रीअसाइनमेंट और राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ देयर चोजन जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, तो दैट मीन्स उनको कोई जरूर नहीं कि मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, उनकी मर्जी वो क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो। इफ डायरेक्टेड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट to grant legal recognition of the gender identity and thereby जो भी आप गवर्नमेंट के फॉर्म भरेंगे वहाँ पे ये क्लियर कट लिखा गया है। इट ऑल्सो डायरेक्टेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर पर्सन। अभी तक तो आगे कुछ बात बढ़ी नहीं है, बट इट इज देयर। ट्रांसजेंडर एज पर द एक्ट, है ना, इज वेरी क्रूशियल। उसका डेफिनेशन है दैट ट्रांसजेंडर पर्सन इज द वन हुज जेंडर डज नॉट मैच the assigned at the birth. It includes trans men, trans woman और person with intersex variation. Okay? So ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ से एक होमवर्क का सवाल मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, फटाफट ये बताइए कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 पास होने के बाद who was the first person
to be assigned as a government post, ठीक है, being a transgender. ओके, चलिए ग्रेट, बताइए दोस्तों, है ना, देखते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन में क्या क्या फीचर है ना। ये नया ही एक्ट आया है दोस्तों, ये पूरे करीबन इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मैं 2-3 आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। ट्रांसजेंडर पर्सन हैज राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, ये बिल्कुल ध्यान रखना, सेल्फ परसीव्ड है, ठीक है, यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप गलती कर सकते हैं। सेल्फ परसीव्ड है, खुद को बताना है, कहीं से अप्रूवल लाने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेट, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ ट्रांसजेंडर पर्सन ऑन द ग्राउंड इंक्लूडिंग डिनायल, discontinuation or unfair treatment in educational institutions, services or employment. ठीक है, transgender person will have the right to be included in their household. In the case of immediate family is unable to take care, he or she may be placed in the rehabilitation center. Provision for separate HIV surveillance center and sex reassignment surgery should be provided by the government. गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत खर्चा करना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट मस्ट डू दैट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट ट्रांसजेंडर सेंसिटिव, नॉन स्टिग्मेटाइजिंग, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सब चीज गवर्नमेंट की तरफ से करी जा रही है, सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स, ओके, दिस इज वेरी क्रूशियल। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम 31 to 34, दिस इज व्हाट यू मस्ट बी नोइंग इट, ठीक है। सो एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट has decided to increase number of judges in Supreme Court from 31 to 34, which is earlier 30 plus 1 होता था, अब हो गया 33 plus 1. Plus 1 is your CGI, ठीक है। There are a lot of cases pending in the Supreme Court. दोस्तों, there are so many cases are pending in the Supreme Court to the tune of around 60,000. At present, section strength was 31, including Chief Justice of India. Once the bill is getting parliamentary approval, it will go to 34, including Chief Justice of India. Chief Justice Mr. Ranjan Gogoi wrote to Prime Minister seeking more judges, ठीक है। In 1998, the judges' strength was increased from 18 to 26. In 2009 it was increased to 31, okay, so now it is in 34, okay, so ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो मैंने आपके लिए दे दी। चलिए ग्रेट दोस्तों, there are a lot of appeal are happening against the decision of High Court, and that is where the major issue is happening in the Indian judiciary system, ठीक है दोस्तों। Prior to the establishment of Supreme Court, appeal against the decision of Indian High Courts could be filed only with the Privy Council in the London. ब्रिटिशरों के समय पे बात थी। Then later on we established in 1937 Federal Court, ठीक है, and Government of India Act 1935 के मुताबिक उन्होंने बोल दिया कि भाई फेडरल कोर्ट के बाद सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होगी, ठीक है, वो अपील वाला कोर्ट नहीं होगा, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था उनके पास, है ना, अपील वाला मुद्दा तो बाद में आया, ठीक है। When the jurisdiction of Privy Council was abolished in 1949, appeals pending with it were transferred to the Federal Court, which is subsequently named as Supreme Court, ठीक है। What are the provisions for establishing Supreme Court benches, ठीक है। Article 130 says that Supreme Court shall sit in Delhi, in such other places or place as the Chief Justice of India may, with the approval of President from time to time अपॉइंट। तो अभी के लिए तो दिल्ली में उनकी मर्जी कहीं पे भी बैठ सकते हैं, ज़रूरी है ऐसा, क्योंकि इमरजेंसी की प्रावधान के दौरान मतलब हमारी जो दिल्ली अगर कभी फंस गई तो कोर्ट बंद नहीं हो जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट रूल्स गिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द पावर to constitute benches, and he can have a constitution bench of 7 judges in New Delhi and set up smaller benches in 4 to 6 places across the country. दोस्तों, 5 जजेस से ऊपर, 5 या 5 के ऊपर जजेस की बेंच को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोल सकते हैं, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े बदलाव करे गए थे, काफ़ी बड़े चेंजेस करे गए थे, एंड यू मस्ट again say go through this because this is very important. Officially India sees more than 5 lakh road accidents every year. कितने एक्सीडेंट? 5 लाख, ठीक है, leading to around 1.5 lakh death, which is highest in the world, ठीक है। The steep hike in penalties for traffic violation is an important aspect, क्योंकि अगर again say penalty ज़्यादा होगी तो एक तरीके से deterrent act का काम करेगा। Road transport is a subject of concurrent list.
स्टेट गवर्नमेंट आर फ्री टू मेक देयर ओन लॉज। कॉन्करेंटली इसमें आइटम नंबर 35 है, ठीक है। मैकेनिकली प्रोपेड व्हीकल्स इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑन विच टैक्सेस ऑन सच व्हीकल्स आर टू बी लिवाइड। स्टेट लिस्ट में आइटम नंबर 57 है, टैक्सेस ऑन व्हीकल वेदर मैकेनिकली प्रोपेड और नॉट सुटेबल फॉर यूज ऑन रोड इंक्लूडिंग ट्रैम कार और ब्ला 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 करके दे दिया इन्होंने। द अमेंडमेंट लॉ इज इन लाइन विद इंडियाज इंटरनेशनल कमिटमेंट अंडर द ब्राजीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है, वो हमने फॉलो किया था, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। ग्रेट। सो क्या क्या चेंजेस करे गए? सबसे पहला, compensation for road accident victim. Central government will develop a scheme for cashless treatment of road accident victim during the golden hour. बहुत ज़रूरी था दोस्तों, जब एक्सीडेंट होता है तो उस शुरुआत का जो समय है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है, दैट्स कॉल्ड गोल्डन आवर। बहुत बार हॉस्पिटल्स ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, लोग उनको ले जाने के लिए वीकेंड से परेशान होते हैं, तो गुड समैरिटन लॉ लेकर आए, ठीक है, और हॉस्पिटल को भी वीकेंड से कैशलेस ट्रीट करना ये कंपलसरी उनको बोल दिया है, ठीक है। द बिल इंक्रीजेस मिनिमम कंपेंसेशन फॉर रिट एंड रन केसेस इन केस ऑफ डेथ फ्रॉम 25,000 रुपीज टू 2 लाख एंड फ्रॉम अ ग्रीवस इंजरी फ्रॉम 12,500 टू 50,000 रुपीज। कंपलसरी इंश्योरेंस कर दिया दोस्तों, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट फंड बना दिया गया है, और एक कंपलसरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल रोड यूजर्स कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो आप व्हीकल चला नहीं सकते हैं, ठीक है। गुड समैरिटन लॉ अभी हमने बात करी। द पीपल हु आर ऑन द रोड हु आर गिविंग असिस्टेंस टू द पीपल हु हैव सफर्ड इंजरी, ठीक है, इन गुड फेथ एंड दे आर डूइंग वॉलंटरली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, जब वो मदद करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों बाद में पुलिस उनको बहुत इन्वेस्टिगेट करती थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे गुड समैरिटन लॉ मतलब लेकर आने की जरूरत पड़ी थी। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कमिंग एज रिकॉल ऑफ व्हीकल इन केस ऑफ देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ठीक है, सो देयर इज अ रिकॉल ऑफ व्हीकल विच इज कमिंग, ओके। सो अगर व्हीकल या डिफेक्टिव है या एनवायरमेंटल चीज़ को डैमेज करता है तो उस पूरे के पूरे व्हीकल को डिफेक्टिव व्हीकल को से रिकॉल करने की बात करी है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है, विच विल बी अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहिए, है ना, उसके बारे में प्लान होगा। रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है, अलग अलग मोटर व्हीकल का स्टैंडर्ड, है ना, उनका रजिस्ट्रेशन, ये सब यहाँ पे से किया जाएगा। मेरे हिसाब से आगे वाली चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। नंबर 8, 9, 10 भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। टैक्सी एग्रीगेटर भी उन्होंने डिफाइन करना चालू कर दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि दुनिया बदल रही है। वी नीड दिस टैक्सी एग्रीगेटर, ओके, सो दे मस्ट कॉम्प्लाई with IT Act 2000, okay, so this is what they have made it compulsory. Validity of driving license, the bill reduces validity of driving license from current 20 years to 10 years, ठीक है, and eligible only till the 60 years of age, ठीक है, so this is crucial. Commercial licenses will now be valid for 5 year instead of earlier 3 year, okay, तो ये changes है, बिल्कुल पता होने चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम उन्होंने बढ़ाने की बात करी ताकि ट्रैफिक वायलेशन को और बढ़ावा दी जाए, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा, आज ही सुबह सुबह पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हाईवे पे होगा, जो 20 मीटर टावर के ऊपर बहुत सारे कैमरे लगाए जाएंगे एंड दे विल ट्राई टू चेक ऑल दिस अगेंस्ट एब्यूजेस। RTI 2005 का अमेंडमेंट किया गया दोस्तों। RTI इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, RTI इज अ फंडामेंटल राइट, दोस्तों ये समझ लीजिए, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन was recognized as fundamental right under part 3 of Indian Constitution, ठीक है। Supreme Court repeatedly affirmed its position that right to freedom of information is intrinsic to right to freedom of expression, ठीक है। PUCL versus Union of India 2004 केस के मुताबिक। This is a precise reason why certain original traits of information commissions are equated to that of constitutional bodies, और जिसको इन्होंने चेंजेस कर दिए अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। हम बात करते हैं 60 लाख एप्लीकेशंस आर फाइल्ड एवरी ईयर फॉर RTI, ठीक है। सो व्हाट आर द सैलिएंट पॉइंट्स ऑफ RTI? दोस्तों RTI इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी दोस्तों, है ना, बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये सब, और एनी अदर बॉडी विच इज कॉल्ड अ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, हम वहाँ से ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये सुनो दोस्तों, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है
कोई भी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनी गई है और लॉ ऑफ पार्लियामेंट से बनी गई है या स्टेट लेजिस्लेचर से बनी गई है और इट इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा आपको, वेरी गुड। और इट इज ऑल्सो इंक्लूड अ बॉडी ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, और एनजीओ सब्सटेंशियली फाइनेंस और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द फंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अब इन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव करे दोस्तों, ठीक है। उस बदलाव में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है, ठीक है, उनकी रैंक नीचे कर दी। पहले वो इलेक्शन कमीशन के लेवल तक के थे, अब उनको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। उनके अपॉइंटमेंट के अंदर भी चेंजेस कर दिए। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इट रिप्लेसेस 63 ईयर ओल्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म हो गया, अब उसकी जगह पर आया नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, ओके। एमसीआई वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू रेगुलेट मेडिकल एजुकेशन एंड प्रोफेशन इन द कंट्री। हमने देखा था एमसीआई वाज डूइंग लॉट ऑफ करप्शन एंड दैट्स व्हाई दे सुप्रीम कोर्ट पुट लॉट ऑफ स्ट्रिक्चर इन 2016 और एमसीआई को हटाने की बात करी गई। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑल्सो फेल्ट दैट एमसीआई कुड नॉट एंश्योर the mandated responsibilities, ठीक है, of ensuring competent doctors, adherence to the quality standard, ठीक है। तो इसकी वजह से ये नया लॉ लेकर आने की जरूरत पड़ी थी। इट वॉज अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ रंजीत रॉय चौधरी एक्सपर्ट कमेटी। क्या चेंजेस करे गए दोस्तों? इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, उसके अंदर 4 ऑटोनोमस बॉडी होंगी, बोर्ड होंगे, सॉरी। एमसीआई सब्ज्यूम किया जाएगा। इट विल रेगुलेट मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस दोनों, ठीक है, ये आप समझते होंगे, वेरी गुड। स्टेट्स विल एस्टैब्लिश स्टेट मेडिकल काउंसिल विद इन 3 years and this council will have a role similar to NMC at the state level. NMC will have a chairperson, 10 ex officio member, 22 part-time member and hence 33 members, ठीक है। कौन कौन से 4 ऑटोनोमस बोर्ड होंगे, ठीक है? एक होगा यूजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, एक हो जा पीजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। ये सुनो, उनका काम होगा एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना, करिकुलम बनाना, गाइडलाइन देना, मेडिकल एजुकेशन के ऊपर बात करना। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड एंड एथिक्स इन मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ठीक है। तो ये 4 ऑटोनोमस बोर्ड होंगे विच विल बी पार्ट ऑफ एनएमसी। ग्रेट। सो दोस्तों विल बी क्लोजिंग दिस सेशन फ्रॉम हियर, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। आई एम श्योर यू मस्ट बी एंजॉइंग इट। इस पीडीएफ को ProTalent digital.com से लेना भूलिएगा मत, ओके, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज आपको ProTalentdigital.com पे मिलेगी, ठीक है। दिस इज अवेलेबल टू यू, प्लीज टेक इट, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन, ओके दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।